اپنی ہتھیار نکالی، لیکن میرے ہتھیار کو لوڈ کرنے کے لیے دوسرے ہاتھ کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے میری جپسی میں پیچھے سے آ کر میرا گلا پکڑ کر مجھے یہاں بھونکتے گئے، پھر میں دوسری طرف گرا، اپنے ڈرائیور کی سیٹ کی طرف آیا، ڈرائیور کی سیٹ کی طرف آنے کے بعد اور ایک گولی ماری مجھے سر پر، تو میں جھک گیا، اور جب جھک گیا تو اور ایک گولی ماری میرے پیٹ میں لگی، ایسی لگی کہ میرے پیٹ سے آواز آئی پھس، اور میں وہیں پر ڈرائیور کی سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر بھی آگے بڑھ کر حملہ کرنے والوں کی چاقو اپنے ہاتھ میں لے لی، ان کا چاقو لیا تو اس ہاتھ پر وار کرے، یہ ہاتھ زخمی ہو گیا، تو گر گیا۔ گرنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں، ارے ظلم، وہ بربریت کی حد نہیں ہے۔ ارے آپ نے یہ سب کیمرے میں نہیں دیکھا، ارے کرکٹ بیٹوں سے مارتے گئے مجھے، ہاکی اسٹکوں سے مارے، بیس بال سے مارے۔ جب میں گر گیا سیٹ پہ سے نیچے، رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا رہا، تو وہ درندوں نے بیٹ اٹھایا اور بیٹ اٹھا کر بیٹ کو پلٹا کر جہاں گولیاں لگی تھی وہاں پہ گھسا کر ویسے اسکرو ڈرائیور کو ٹائٹ کرتے ویسا ٹائٹ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ درندوں مجھے پورا مار دینا، اگر ذری بھی جان بچے گی تو خدا کی قسم تم ایک ایک کو چن چن کے اپنا انتقام لوں گا۔ اور ان درندوں نے کہا کہ ہاں پہلے تجھے تکلیف دیں گے، اور بیٹ یہاں گولیوں میں گھسڑتے گئے، لات مارتے گئے، اتنا مارا کہ جپسی کے نیچے میں چلا گیا، میرے پیروں کے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ گھسیٹنے کے بعد آپ نے دیکھنا شروع کیا، وہاں سے کیمرہ آیا اور کیسا بیٹھ کے مار رہے تھے، اور پھر بول رہے تھے کہ تیری گردن اڑانی ہے اکبر، گردن اڑائیں گے، کہاں اڑا دو، اس چیز کا خاص خیال رکھو کہ جان بچ گئی تو تمہاری چلی گئی۔ اور اللہ کو منظور تھا کچھ، محسن کسیری دوڑتا ہوا آیا، یہ منصور آیا دوڑتا ہوا، احمد بلالہ آئے، گولیاں پھر چلا رہے تھے، ان کے بندوق پکڑ لیے، جو مارنے آئے تھے وہ مر کر گئے۔ اور اللہ جس کی موت سے راضی نہیں تھا، 18 آدمی مل کر آئے، 18 آدمی مل کر حملہ کرے میرے اوپر۔ ارے ہمت تھی تو ایک ایک مل کر آنا تھا یا سامنے آنا تھا، خدا کی قسم اکبر اویسی برابر مقابلہ کرتا۔ ارے میں یہ تو یہی سمجھا کوئی مظلوم آیا ہے، کوئی فریاد لے کر آیا ہے مسلمان، اس کی فریاد کو سننے کھڑا تو اس نے مجھ پر وار کیا۔ خیر اس کے بعد اویسی ہاسپٹل گیا، اویسی ہاسپٹل کو لوگ کہتے تھے کہ وہاں گئے تو کوئی نہیں بچتے، ارے اکبر اویسی بچا ہے تو آج اویسی ہاسپٹل کی بدولت بچا۔ الحمدللہ اویسی ہاسپٹل کی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ایک کتاب کو جس طریقے سے کھول دیتے ہیں، ارے یہاں سے لے کر یہاں تک اور پھر یہ پیٹھ سے لے کر یہاں تک پیٹ کو کھول دیا، ادھر سے پلٹا دیا، نیچے سے پلٹا دیا، اوپر سے پلٹا دیا، اور جسم کے سارے انتڑیوں کو نکال دیا۔ گردہ کو گولی لگی، پیشاب کے تھیلی کو گولی لگی،
पत्नियां जख्मी हो गई, ये फसलियों पे गोली लगी। उसके बाद भी ओएसी हॉस्पिटल में 10 घंटों की सर्जरी हुई। डॉक्टर मुमताज व एजाज, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, मजरुद्दीन अली खां, बशीर साहब एनेस्थेटिस्ट, ये सारे डॉक्टरों की टीम 10 घंटे तक इलाज करती रही। अरे मैं जब मंसूर और उनके भाई महमूद मुझे उठाए तो अल्हम्दुलिल्लाह गोलियां थी, जख्म थे 28, 25 ज़रब थे सीने पे, खून बहते बहते गिर गया, नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होश में था, होश में था, बेहोश नहीं हुआ। एक गोली लगी तो मर गया, यहां इतने गोलियां लगे नहीं मरा। उठा, अपना फोन उठाया, अपना फोन उठाकर अपने बीवी को फोन किया। मैंने कहा कि तुम्हारा शोहर आज अल्लाह की राह में शहीद होने की डगर पर है। आज अल्लाह की राह में तुम्हारा शोहर गोलियां खाया है, जख्मी है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी मैयत पे रोना नहीं, तुम तमाशा नहीं बनाना। एक बहादुर की बीवी हो, बहादुर की बीवी की तरह रहना। मैं दवाखाने को जा रहा हूं, अगर मर जाऊं तो औलाद की फिक्र नहीं करना, अल्लाह खुद देख लेगा, उनकी परवरिश कर लेगा। अरे वो फोन खत्म किया, ओएसी हॉस्पिटल में डॉक्टर मजहर को फोन किया, कहा मजहर साहब गोलियां लगी हैं, जख्मी हूं, खून भी बहते बहते रुक गया है, आ रहा हूं, सारे इंतजामात करके रेडी रहो। दवाखाने को पहुंचता हूं, डॉक्टर मेरा पल्स देखती है, कहती है पल्स 0 है, ब्लड प्रेशर 0 है, और बाजू डॉक्टर से कहती है कि बीपी नहीं है, पल्स नहीं है, 0 है, शायद 10 सेकंड जिंदा रहें। मैंने पलट कर उस लड़की का, उस डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा कि 10 सेकंड नहीं, अकबर ओवैसी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, 10 घंटे मेरे पास, बोलो डॉक्टरों से क्या कर सकते करो, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। मजहर साहब आए, डॉक्टर मजहर से कहा कि मजहर साहब असद भाई दिल्ली में हैं, वो दिल्ली में हैं, आप परवाह नहीं करिए, मैं कह रहा हूं मुझे वेंटिलेट कर दीजिए, वेंटिलेटर डालिए। वो बोले अकबर भाई कैसा? मैंने कहा डाल दो, डरो मत, मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम डरोगे ये समझ के कि वेंटिलेटर डाल दिए और मैं मर गया तो लोग बोलेंगे कि अगर नहीं डालते तो शायद बच जाता। आप फिक्र मत करो, डाल दो वेंटिलेटर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वेंटिलेटर डालने से पहले मंसूर से पलट कर कहा, मंसूर मर जाऊं तो मेरा इंतकाम जरूर लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते वेंटिलेटर डाल दिया गया। ऑपरेशन हुआ 10 घंटे का। वहां से केयर को गया, रात में केयर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स पर था। मैं शुक्रगुजार हूं केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम का, सोमा राजू की टीम का। कितनी तकलीफ में था मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। बहुत तकलीफ उठाई मैंने, बहुत। मेरे जिस्म में 11 ड्रेन पाइप्स थे। एक गुर्दे में गोली लगी, फट गया गुर्दा। डॉक्टर्स कह रहे थे गुर्दा निकाल देंगे, लेकिन एक ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर आदिल ने कहा कि नहीं निकालेंगे, रखेंगे।
अकबर ओवैसी के साथ दुआएं हैं। डॉक्टर ने कहा निकाल देना जरूरी है, तो कहा नहीं, निकालना है तो 5 दिन बाद निकालेंगे। गुर्दा वैसी ज रख दिए, अंतड़ियों को टाके मारे, पेशाब की थैली गॉल ब्लैडर फट गया गोली से, उसको भी सी दिया गया, रख दिया गया। वेंटिलेटर पे 3 दिन था। निकला तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाज दी और बुलाया, तो अपने सदर को बुलाया, अपने भाई को बुलाया और कहा कि भाई आप परेशान नहीं होना, अकबर ओवैसी मरेगा नहीं। मैंने बाबा से वादा किया है कि जिस तरीके से मैंने बाबा का साथ दिया था, मेरे आखिरी दम तक मैं अपने सदर का असदुद्दीन ओवैसी का साथ दूंगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे मेरा सदर रोने लगा, मेरा भाई रोने लगा, कहने लगा अकबर मैं 5 दिन से अपने आंख के आंसू को रोके रखा, सदर हूं जमात का, रो नहीं सकता, भाई हूं तेरा, तड़प रहा हूं, रोना चाहता हूं, रो नहीं सकता। अरे वहां था तो कैसा, लिवर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिवर भी काम बराबर नहीं कर रहा, डॉक्टर परेशान। ऐसा जाड़ा आया कि बिस्तर हिलने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि खत्म अकबर साहब, खत्म हो जाएंगे। रोने लगे, चिल्लाने लगे अफराद खानदान। अरे किडनी जख्मी थी, पेन किलर दर्द की दवा नहीं दी जा सकती थी। यहां से अंतड़ियां बाहर थीं, अंतड़ियां काम नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर जी हाथ अंतड़ियों में डाल के अंतड़ियों को खींच रहे थे। मैं होश में था, दर्द से चीख रहा था, और जब जब चीखा सिर्फ एक ही आवाज निकाली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत की खिदमत की रसूल अल्लाह, मेरी तकलीफ में मेरी मदद करना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी तकलीफ, ये अंतड़ियां बाहर निकाल दिए। चीख ही रहा था कि यहां से जो सुई डाले, यहां गर्दन में से तो दिल तक लेकर गए उसको। चीखता गया, चिल्लाता गया रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। फिर एपिडोरल डाले पीछे, रीढ़ की हड्डी में ऐसा सुई चुबा दिए, वो भी तकलीफ ले ली। डायलिसिस कर दिए, वो भी तकलीफ ले ली। फिर वहां से निकला, इतनी तकलीफ कि अंतड़ियां ऑपरेशन कर दिए। पहले ओवैसी हॉस्पिटल में पेट को खोले, 200 टाकों से सिए। केयर हॉस्पिटल ले गए, फिर खोल दिए, फिर पेट को सिए, 200 टाके डाले। फिर 1.5 महीने के बाद ग्लोबल हॉस्पिटल को गया, फिर वहां पे पूरे 200 टाके खोले। 15 दिन हुए हैं अभी, 200 टाके पूरे मेरे जिस्म पर हैं अभी भी। फिर भी खड़ा हूं इस उम्मत मोहम्मदी के सामने, उनसे मुखातिब हो रहा हूं। अरे यही टाके आज से, मैं घर आने के बाद 4था दिन था, फजर की नमाज को उठने की आदत, उठ गया, और जब उठ गया तो क्या देखता हूं, लाइट बंद थी, पूरी रजाई कच्ची हो गई। तो रजाई को यूं यूं देखा, सिगट सिगट क्या है। जब लाइट खोला तो पूरा सीना और पीठ खून में भर गई, टाके खुल के टाकों में से खून निकलने लगा। आज भी मेरे पेट में सुराख हैं, पट्टियां बनी हैं यहां से यहां तक।
फिर भी आपके दरमियान में हूं। इसलिए हूं क्योंकि ख्वाहिश थी कि अपनी सरगर्मियों का, अपने खिदमात का और ये मुसलमानों के खादिम का खिदमत का आगाज माह रमजान के इस मुक़द्दस जलसे यौमुल कुरान से और अल्लाह के घर से आगाज करूं, इसलिए आपके दरमियान में आया हूं। अगर मेरी आवाज को सुनकर समझ रहे हैं कि सेहत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत हो गई है, लेकिन मुकम्मिल अभी नहीं हुई है मेरे भाई। लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। मुझे याद है जब मैं 99 का इलेक्शन लड़ा, मुगलपुरा पानी की टाकी में सालार मिल्लत ने अपने तकरीर में कहा, कह रहे हो कि एक बच्चा है चंद्रायन गुट्टे में मंजलिस का उम्मीदवार। मुझे सालार का जुमला याद है, बच्चा नहीं है, बोर बच्चा है अकबर ओवैसी का आता सालार ने। अल्हम्दुलिल्लाह शेर का बच्चा हूं, कोई चूड़ी का बच्चा नहीं कि 2-4 गोलियों से खत्म हो जाऊं। कोई चूड़ी का बच्चा नहीं हूं, सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद हूं। चंद चाकू, चंद सत्तरों के हमलों से दम टूटने वालों में से नहीं है अकबर ओवैसी। उठकर आऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि दुनिया से लोग जब रुखसत हो जाते हैं तो उस नेक इंसान के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग शरीक होकर ये कहते हैं कि नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिखाया कि ये मुसलमान कितना मुझे चाहते हैं, कितना ये मुसलमान मुझे चाहते हैं। अरे ओवैसी हॉस्पिटल में खड़ा वो मजमा जिसके तस्वीर मैंने देखी हैं, अरे वो मजमा मोहब्बत में आया था, दुआएं लेकर आया था, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए खड़ा था कि अल्लाह अकबर ओवैसी को हयात दे दे। अरे यही वो मजमा केयर हॉस्पिटल को भी आया, चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, नमाज बाजमात अदा किए, लेकिन हिला नहीं उस वक्त तक जब तक कि अकबर ओवैसी का वेंटिलेटर नहीं निकलता। अरे मैं कैसे एहसान अदा करूं इन मुसलमानों का? अरे मैं इन मुसलमानों का एहसान अदा नहीं कर सकता। अरे मुझे गोली लगी तो कई हाथ अल्लाह की बारगाह में उड़ गए। मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं तो कई सर अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अल्लाह की बारगाह में अपने आंसुओं के नजराने पेश करने लगे। तो कई कदम अपने घरों से दौड़ने लगे, कई ज़ईफ, कई बूढ़े, कई नौजवान, कई खवातीन अपने घरों से नंगे पैर दौड़ते हुए यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा के आस्थानों पे चले गए, तो बाद पाक क़िबला के आस्थाने पर चले गए, तो आगा मोहम्मद हसन साहब क़िबला के आस्थाने पे चले गए, तो कई कदम दौड़ते हुए काबे में अल्लाह के घर के तवाफ में करने लगे, तो कई कदम मदीने शरीफ में हरम में सरकार की बारगाह में चले गए। अरे सारे आलम के मुसलमानों ने इस गुनहगार के लिए दुआ की। अरे मैं कैसे एहसान अदा करूंगा इन मुसलमानों का? मैं एहसान नहीं अदा कर सकता। मेरा रुआ रुआ, मेरा जिस्म का एक खतरा खतरा खून एहसान मन है मुसलमानों ने आलम का, जिसने मेरे हयात के लिए दुआ की। मैं एहसान अदा नहीं कर सकता। पर्दानशीन मां और बहनों ने रोजे रखे,
नौजवान बच्चों ने दस्तरखान बिछा के दुआ की, बुजुर्गों सजदे में थे, यतीमों ने दुआ की, तो उलमाओं ने अपने इल्म के जरिए अल्लाह को वास्ते देकर दुआ की, तो मशाइखीन उज़्ज़ाम ने अपने खानखाहों में और अपने बारगाहों में जाकर बैठकर दुआ की। मैं इनका एहसान नहीं अदा कर सकता। कोई नजफ अशरफ को गए तो कोई करबला मोहल्ला में दुआ की, तो कोई हजरत गौसुल आजम दस्तगीर के बारगाह में दुआ करे, तो कोई मक्का मस्जिद में दुआ की। अरे है सरजमीन दखन के मुसलमानों, तुमने तो मुझे खरीद लिया। आज अकबर ओवैसी की एक एक सांस तुम्हारे एहसान तले दबी है। जब तक जिंदा हूं, जितनी हयात है वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे ही लिए। अरे तुम्हारी दुआओं ने मेरे बच्चे को यतीम होने से बचा लिया, नहीं तो मेरे बच्चे यतीम हो जाते। मेरी मां तड़प रही थी, मेरी मां की दुआ मेरे साथ, मेरे पीरजादे की दुआ मेरे साथ, मेरे मरहूम बाप की दुआएं मेरे साथ। अरे मक्का मस्जिद के इस मिंबर के दामन में अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, जब मुझे उठाया गया, जीप में डाला गया, उस वक्त एक नूरानी चेहरा सफेद लिबास में मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो कहने लगे मैं मोहम्मदुर रसूल अल्लाह हूं। अकबर जा मेरे सर पर हाथ फेरा रसूल अल्लाह ने और कहा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा, जा। अरे मैं रसूल अल्लाह ने और कहा कि जा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं केयर हॉस्पिटल में था, वल्लाह मैंने देखा अपनी आंखों से गौसुल आजम दस्तगीर खड़े हैं, ख्वाजा अजमेरी खड़े हैं, बंदा नवाज खड़े हैं और सालार है कि उनके कदमों को पकड़े कह रहे हैं कि मेरे बेटे की जान को बचा लो, मेरे बेटे की जान को बचा लो। अरे मैं सच्चे बाप का सच्चा दियानतदार ईमानदार बेटा हूं। मैंने जिंदगी में हराम नहीं खाया, आराम नहीं किया, किसी का कुछ लिया नहीं, किसी का लूटा नहीं। दुनिया जानती है कि अकबर ओवैसी ने अपने दर पे आने वाले को फूल नहीं तो कम से कम फूल की पंगड़ी देकर रवाना किया, कभी उसको मायूस नहीं भेजा। लेकिन ये जरूर कहूंगा, मसायब और मुसीबत से गुजरता हुआ यहां तक आया। नहीं मालूम कि वो क्या अधूरा काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जरूर बयान करूं जिसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि सारे जमीन व आसमान वाले, सारे जमीन व आसमान वाले अगर एक मर्द मोमिन के कत्ल में शरीक हो जाएं तो उन सारे जमीन व आसमान वालों को मुंह के बल जहन्नुम में डाल दूंगा, अल्लाह कहता है। और कयामत के दिन सबके सामने अगर सबसे पहले अगर किसी बात का फैसला होगा तो वो खून नाहक का फैसला होगा। मेरा खून नाहक बहाया,
अरे लोग कहते हैं कि हम मिल्लत इस्लामिया के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस पुराने शहर की सरजमीन को और गयूर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को अपने खून का तोहफा उनको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पीठ पे वार नहीं खाई, सीने पे वार खाया। पीठ दिखाकर भागा नहीं, या मदद की फरियाद नहीं की, या फिर यह कहा कि छोड़ दो क्यों मार रहे हैं। यही कहा कि मारना है तो पूरा मार दो, जर्रा भी बचा तो फिर तुम जर्रे भी नहीं बचेंगे। कोई साथ दे या न दे, अकबर ओवैसी की आदत है। हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में जब निकला था तब भी कोई साथ नहीं थे। 4-5 लोगों का कारवां था, निकल गया था। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल वगर। लोग आते गए, कारवां बनता गया। जिस हल्के में सिर्फ 4-5 लोग थे उस हल्के का एमएलए बना। आज भी कोई साथ दे या न दे, अकबर ओवैसी किसी के भरोसे पर जिंदगी नहीं जीता। अकबर ओवैसी जिंदगी जीता है तो अल्लाह और रसूल अल्लाह के भरोसे पे जीता है। कोई साथ दे या न दे, अल्लाह मेरे साथ है और रसूल अल्लाह की कसम, मेरे चाहने वालों की आंखों से टपके एक एक आंसू के हिसाब का बदला मैं जरूर हासिल करूंगा, जरूर हासिल करूंगा। क्योंकि मेरे चाहने वालों ने बहुत रोया है। मुझे मालूम नहीं था, असरा दवाखाना गया तो पर्दानशीन खवातीन रोती हुई मेरा हाथ पकड़ लिए, कहे कि अकबर बाबा आप गरीबों की आवाज है, हमारा आसरा है, हमारी दुआ है, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं दुआ करी, 30 दिन का रोजा रही आपके लिए। दिल में अभी ख्याल लाई, लोग बोल रहे हैं अकबर बाबा ठीक हो गए, अल्लाह मुझे दिखा दे कहीं से। मैं नहीं सोची थी, मगर आप दिख गए। अब दिख गए हैं तो मैं अब 40 दिन का रोजा रखूंगी आपके। अरे कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने रोजा रखा, मैं उनका एहसान अदा नहीं कर सकता। एक लड़की दारुस्सलाम को आई, अहमद पाशा साहब ने मुझसे कहा कि जिस दिन से मेरे ऊपर हमला हुआ उस दिन से लेकर अब तक रोजा रख रही है, 30 अप्रैल से, और यही कह रही है कि जब तक मैं अकबर भाई को अपनी आंखों से नहीं देखती मैं अपने रोजे छोड़ने वाली नहीं हूं। पाशा खादरी साहब ने कहा, उनके वालिद ने कहा आप समझाइए। समझाए तो भी बोली कि नहीं, मैं अकबर भाई को देख लूंगी और रोजा फिर उस वक्त छोड़ूंगी। अरे ऐसे कई हैं जिन्होंने इस गुनहगार के लिए दुआ किया, जिन्होंने इस खादिम को फिर से आपकी खिदमत करने का लिए मेरी हयात के लिए अल्लाह से दुआ की। यह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, सारे आलम के मुसलमानों की दुआएं हैं, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआएं हैं, नौजवान बच्चों की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं, उलमाए मशाइखीन की दुआएं, हर मकतब फिक्र वालों की दुआएं, हर मसलक वालों की दुआएं कि अल्लाह ने मुझे हयात दी। अल्लाह को 2 खतरे बहुत पसंद हैं। एक वो खतरा जो अल्लाह की राह में बहता है, खून का वो खतरा। दूसरा आंसू का वो खतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता है। अल्लाह को 2 निशानियां बहुत पसंद, वो निशान जो अल्लाह की राह में लगते हैं और दूसरा वो निशान जो अल्लाह के फराइज को अदा करने में लगते हैं। रोज़े क़यामत
अल्लाह की राह में जख्म खाने वाले का जख्म और ताजा हो जाएगा और उसका खून जाफरान की तरह हो जाएगा और उसके पास से मिश्क की खुशबू आएगी। और जालिम को अल्लाह छूट देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। और हदीस शरीफ में है कि जो जालिम है जानता है, उसके बाद भी उस जालिम का साथ दे उसको तखवियत पहुंचाने के लिए, तो वो खारिज इस्लाम हो जाता है। आज अगर कोई अकबर ओवैसी पे हमला करने वालों का साथ दे रहे हैं तो तुम पहले से ही खारिज हो, अब और खारिज हो रहे हैं। मैं तो पहले से बोलता हूं इनको, अब फिर हो गए। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। अरे मेरे पे हमले हुए तो लाल दरवाजा तूने पटाखे उड़ाए, ऐ लोधेवाड़े तूने मिठाइयां तकसीम की, ऐ बीजेपी वालों तुमने खुशियां मनाई। अरे अकबर ओवैसी जिंदा है और तुम पटाखे उड़ाए, अब मैं क्या उड़ाता हूं देखना तुम। अरे गुलाम रसूल अल्लाह है। अरे हमारी जबान खामोश थी, मर नहीं गई थी, अब जबान फिर आ गई है। याद रखो, अगर जबान की दराजी को तुम खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारे गुद्दियों में हाथ डाल के जबान खींचने की ताकत भी हम रखते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कमजोरों की जमात नहीं है, गय्यूरों की जमात है। और अगर तुम समझ रहे हो कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के जोड़ी को तोड़ दोगे, तो नहीं, ये जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। टूटेगी तो ये जोड़ी एक साथ इस दुनिया से रुखसत होगी, जामे शहादत नौश फरमाते हुए रुखसत होगी। ये दो भाइयों की जोड़ी कभी खत्म नहीं होगी। अरे मेरा भाई मेरे हमले को सुनकर अपने घर से नंगे पैर दौड़ता हुआ निकल गया। अरे खुदा की कसम, मैं नहीं भूल सकता अपने मां के आंखों से बहते हुए आंसुओं को। मैं नहीं भूल सकता अपने भाई, बड़े भाई, वो छोटे भाई के आंख से बहते हुए आंसू का। मैं नहीं भूल सकता मेरे मासूम बच्चों के आंखों से बहते आंसुओं का। मेरी मासूम 7 बरस की बेटी ने बार बार यही कहा कि मेरे अब्बू को दिखा दो, उनके पैरों को दिखा दो, मैं देखना चाहती हूं। अरे मेरा बच्चा रोता रहा। अरे आज मेरी बीवी रोती रही। हर किसी ने आंसू आंसू अदा किए और इन मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में जो आंसू के नजराने पेश किए, मैं इस एहसान को भी नहीं भूल सकता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह इन मुसलमानों की मदद कर, इन मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अदा कर। आय अल्लाह, हर मुसलमान जिसने मेरे हक में दुआ की है अल्लाह, तो इनके आल औलाद को नेक बना, काबिल बना, इनके मुसीबतों को दूर कर, इनके परेशानियों को दूर कर। आय अल्लाह, मुस्लिम रोजेदारों के रोजों को कबूल कर, हमारे तरावियों को कबूल कर, हमारी इबादतों को कबूल कर। हमारे में दरमियान में जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बहनें जो घरों में शादियां नहीं हो रही हैं इनके शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा, हमारे इबादतों को कबूल फरमा। और मैं आप तमाम से कहूंगा कि अकबर ओवैसी की ताकत है अगर कुछ, तो वो जोरदार नारे तकबीर अल्लाह अकबर है। एक जोरदार आवाज लाल दरवाजे को Nanda, ¿eh? Normal. Nanda, bueno, es no me que está